Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at Chemistry Online class, Chapter 16 Hydrocarbon. Today is the 7th lecture. In last lecture, lecture number 6, we started the types of isomerism and we studied in detail about the structure isomerism. In today's lecture, we will start from the stereoisomerism and one of its type, optical isomerism, we will study with the dextrorotatory and levorotatory. Let's start from the stereoisomerism. What is stereoisomerism? It is the Greek word stereos means solid. The compound which have the same number and kinds of atoms and bonds but differ in the orientation of the atom in space is known as stereoisomers, and the phenomena is known as stereoisomerism. Or we can say that the compound which having the same structure formula but differ in configuration. Students, you may understand it with the example. For example, we have the two molecules, okay, and both molecules have the same number and kinds of atoms, both have the same number of bonds, both have the same type of bonds. बट अगर स्टूडेंट्स इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर हम हैंग करते हैं स्पेस के अंदर तो दोनों मॉलिक्यूल्स की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी और यू कैन से कि ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी स्पेस के अंदर. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दे आर द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. There are two types. One is the geometrical isomerism, second is the optical isomerism. We have to focus only on the optical isomerism. Optical isomers are further divided into two types. One is the positive enantiomer, which is also known as dextrorotatory, and second is the negative enantiomer, which is also known as levorotatory. Let's start from the optical isomerism. Before to discuss the optical isomerism, we must be familiar with the following terms. Number one is the mirror image. Students, some molecules are like hands. Left and right hands are mirror image, but they are not identical or superimposable. You just see the example. Left hand and right hand, both are the mirror image, but if we try to superimpose, we can't because the finger and thumbs would be clash. Okay, both are the mirror image, but could not be superimposed. Second is the plane of symmetry, an imaginary plane passing through an object which divide it so that one half is the mirror image of the other. Okay, या कोई ऐसा प्लेन जिससे हम किसी भी चीज़ को easily टू में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री. यू जस्ट सी द एग्जाम्पल. हमारे पास जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, हम अगर यहाँ से इसको चाहें तो हम इसको ईजिली यहाँ से टू में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, एंड इफ़ यू ऑब्जर्व दिस वन, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो ये हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. ठीक है, दे हैव नो सिमेट्री प्लेन, तो हम इसको ईजिली दो में डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस साइड पे हमारे पास OH ग्रुप है और इस साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप है. थर्ड वन इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, अ पॉइंट सो सिचुएटेड दैट आइडेंटिकल कंपोनेंट्स आर लोकेटेड ऑन ऑपोजिट साइड. ओके, जस्ट सी द एग्जांपल. दैट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है, दैट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड यू मे सी दैट आइडेंटिकल कंपोनेंट्स आर लोकेटेड ऑन द ऑपोजिट साइड. तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है जिसके दोनों साइड पे हमारे पास आइडेंटिकल कंपोनेंट्स हैं. एंड सेम यू मे सी ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ chiral center. What is chiral center? Chirality. What is chirality? An object that cannot be superimposed on its mirror image is called the chiral compounds. You just see students, hand and feet images are here. और आप देख सकते हैं rather they are mirror image of each other बट दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज. अगर हम इनको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं हैंड एंड फीट को तो हमारे पास हैंड एंड फिंगर जो हैं वो क्लैश कर जाएंगे. बट यू जस्ट सी हियर, हमारे पास बॉल है, हमारे पास ग्लास है, अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट वी कैन ईजली सुपर इम्पोज हिम. ओके, वी कैन ईजली सुपर इम्पोज both of them on each other. Chirality is a property in an object that cannot be superimposed on its mirror image. A chiral molecule has no internal plane of symmetry and has a non-superimposable mirror image. No matter how you turn it, it will never the same as its mirror image. आप किसी भी तरह से इसको टर्न करें, आपको कभी भी इसका मिरर इस तरह नहीं मिल सकता. So on the contrary, it is asymmetric. इनको हम asymmetric कहते हैं. Remember, chiral molecules are asymmetric. Okay, and now the achiral molecule. Achiral molecule have identical and superimposable mirror image and they are symmetric. Again students, remember chiral molecules are asymmetric, achiral molecules are symmetric. Now here another example.
chiral and achiral compounds. Chiral object हमारे पास जो hands के जो हमारे पास जो images हैं they are mirror and cannot be superimposed. और अगर हम flask हमारे पास है, अगर हम इसको करना चाहें तो they can easily superimpose. You may see हम easily इसको superimpose कर सकते हैं, इसलिए हम flask को कहेंगे that is achiral and hand image is the chiral. Now come to the molecules. Carbon based chiral centers. हमारे पास molecules कौन से होते हैं जो कि chiral होते हैं? Carbon atom which are bonded with the 4 different group is called the asymmetric or chiral. The first one, just observe this. Here this carbon has the 4 different atoms bonded to the carbon. Is it? Here this carbon are bonded with the 4 different atoms. That's why it is known as chiral. Just observe this one. Here the carbon atoms are bonded with the 4 different atoms. Okay, it is also chiral. What about this molecule? Is it chiral? No, it is achiral. Why? Because it does not have the 4 different atoms or group bonded to the carbon. Okay, 2 are identical, that is hydrogen. Okay, let me tell you students, we have to focus only on the chiral molecule because in optical isomerism we will study about only the chiral molecules. So what is chiral molecule? The carbon atom which have the 4 different groups attached with it. Carbon based chiral center, you just observe it. Here is a molecule. हमारे पास 4 different atoms attached हैं. यहाँ पे भी हमारे पास देख सकते हैं इसका mirror image है. बट अगर इसी तरह के दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो वी कैन नॉट. आप देख सकते हैं हमारे पास वाइट बॉल्स, येलो बॉल्स, ब्लैक बॉल्स, दे कुड बी सुपर इम्पोज, बट हमारे पास रेड एंड ग्रीन ये हमारे पास सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं. ओके, सो such type of molecules are known as chiral molecule. Now come to the optical activity. What is the optical activity? Solutions of some organic compounds have the ability to rotate the plane of polarized light. These compounds are said to be optically active and the property of a compound is called the optical activity. And let me tell you students, the optical active compounds we can only observe in the polarimeter. Polarimeter हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जितने भी compounds होते हैं जो कि optically active होते हैं उनको measure करते हैं एक टेक्निक के ज़रिए, that is known as polarimeter. Okay, you just see the student example. आपके सामने जो डायग्राम शो की गई है इसमें आप देखिए, the first is the A point. That is a light source produce light vibrating in all direction. You just observe this one. लाइट सोर्स है, हमारे पास यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है जो कि तमाम डायरेक्शंस में ईजिली वाइब्रेट कर रही है. बी, दैट इज़ द पोलराइज फिल्टर ओनली अलाउ थ्रू द लाइट वाइब्रेटिंग इन वन डायरेक्शन. यू जस्ट ऑब्जर्व दिस स्टूडेंट, दैट इज़ द पोलराइजिंग फिल्टर. ये पोलराइजिंग फिल्टर क्या कर रहा है? ये तमाम डायरेक्शन में लाइट को यूनी डायरेक्शन कर देता है. लेट मी शो यू अगेन. हमारे पास ये लाइट जो है ये ऑल डायरेक्शंस में है, इसको यूनी डायरेक्शन में कर देता है पोलराइजिंग फिल्टर. अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये वाली जो डायरेक्शन है लाइट की वो इसमें से गुजर के यहाँ पर आ रही है और बाकी जो लाइट्स हैं हमारे पास वो वहीं पे पोलराइजिंग फ़िल्टर के ज़रिए स्टॉप हो जाती हैं और सिर्फ हमारे पास वो लाइट इंटर हो सकती है जो कि हमारे पास यूनी डायरेक्शन में होती है. ओके, तो इस लाइट को जो हमारे पास यूनी डायरेक्शन में हमारे पास आ गई है दैट इज़ नोन एज प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट. ओके, जो कि हमारे पास पोलराइजिंग फ़िल्टर से गुजर के आती है, दैट इज़ नोन एज plane of polarized light. C is the plane polarized light. C, that is the plane polarized light passes through the sample. ये आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन जो है सैम्पल वो इस मटेरियल के अंदर, इस जो हमारे पास जो ये एपिटस है इसके अंदर होता है हमारे पास सैम्पल. ओके, D is the if substance is optically active it rotate the plane of polarized light. Now you student just observe it. आपके पास लाइट इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, बट जब सैंपल से ये गुजरी है तो इसने प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट की डायरेक्शन चेंज कर दी है, कुछ इस तरह से कर दी है. ठीक है, एंड द वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव. तो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो कि हमारे पास कायरल होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट. लेट मी शो यू अगेन, दैट इज़ द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट. जब पास होती है किसी सैंपल के ज़रिए तो वो क्या कर देती है? उसको रोटेट कर देती है. तो आप देख सकते हैं हमारे पास पहले इस डायरेक्शन में है
आफ्टर पासिंग फ्रॉम द सैंपल हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। E, that is the analyzing filter, is turned so that the light reaches its maximum. अब हम यहाँ से इस एनालाइजिंग फिल्टर के ज़रिए रोटेट करते हैं कि हमारे पास ये जो लाइट जो हमारे पास रोटेट होके आ रही है उसको हम मैक्सिमम अचीव कर सकें या मैक्सिमम हम उसको ऑब्जर्व कर सकें। F is the direction of rotation is measure coming towards the observer, एंड यहाँ पे ऑब्जर्वर जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस सैम्पल के अंदर कोई कंपाउंड मौजूद है जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड की तरफ कर देता है, दैट इज़ नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको डेफिनेशन बता रही थी और टाइप्स बता रही थी तो उस वक्त मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऑब्वियसली अभी आई एम श्योर कि अभी आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन से होते हैं। यहाँ पे मौजूद सैंपल अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड की तरफ कर देता है तो ऐसे सैंपल्स को हम कहते हैं दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। Okay, and second is if the sample turn the plane of polarized light to the left hand side or anti-clockwise, that is known as levorotatory. You got it student? हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ करता है जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, और अगर हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को नेगेटिव की तरफ करता है दैट इज नोन एज लेवोरोटेटरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पोलरिमीटर है और ये तमाम पोलरिमीटर के आपको बता दिया गया है कि किस तरह से इसके अंदर वर्क होता है, किस तरह से हमारे पास जो सैंपल होता है वो किस तरह से हमें वी कैन ऑब्जर्व कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। समरी बिफोर टू डिस्कस द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अभी तक हमें क्या चीज़ समझ आई है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, विच आर एक्चुअली द chiral मॉलिक्यूल्स। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ polarized light. You got it students? Optically active compounds are actually the chiral molecules. और optically active कौन से compounds होते हैं which can rotate the plane of polarized light. Okay? Chiral molecules कौन से होते हैं? Chiral molecules mean which do not superimpose on its mirror image. ठीक है, कौन से होते हैं chiral molecules? जिसमें हमारे पास कार्बन के जो 4 वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट एटम से अटैच होती हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल्स में दिखाई थी। ऐसा कार्बन जिसकी 4 एटम्स हमारे पास डिफरेंट कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी हमारे पास डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ अटैच होती है, दे आर नोन एज chiral मॉलिक्यूल। chiral कार्बन इज एक्चुअली द sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि जब हमारे पास 4 वैलेंसीज हम शो कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जब भी हमारे पास होता है दे आर sp3 हाइब्रिडाइज and which all valencies attach with the different groups. Now here is another word, that is the racemic mixture. अब racemic mixture एक different सी चीज़ है। What is that? Racemic mixture student एक ऐसा mixture होता है जिसमें हम लोग दोनों optically active compounds, हमारे पास जो एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और लीवोरोटेटरी, दोनों का हम equal molecular mixture लेते हैं और फिर उसको plane of polarized light से पास करते हैं। तो obviously प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट से अगर आप उसको पास करेंगे तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ करेगा। लीवोरोटेटरी क्या करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ करेगा, और इन द एंड हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उसकी दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी। सो ऑप्टिकली वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। यू गॉट इट स्टूडेंट्स? हमारे पास ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारे पास दोनों ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी का इक्वल अगर हम लोग मिक्सचर बना लें तो हमारे पास अगर हम उस सैंपल को पोलरिमीटर में से लाइट में से पास करते हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। इस वजह से हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। होपफुली स्टूडेंट्स यहाँ अब तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द टॉपिक, आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हमारा मेन टॉपिक है। नाउ कम टू दैट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर द 2 different isomers are the same in every way except being non-superimposable mirror images of each other, and optical isomers are known as a chiral molecule. A compound is chiral when it cannot be superimposed on its mirror image. The pair of mirror imaged non-superimposable compounds are known as enantiomers. Okay? हमारे पास इनको enantiomer कहा जाता है जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी होते हैं। इवन दो वेरी सिमिलर
still even though very similar, still different enantiomers of the same chiral drugs can have very different फार्मोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स. आप देख सकते हैं वो तमाम हर लिहाज से सेम होते हैं, लेकिन क्योंकि वो कायरल होते हैं, क्योंकि उनकी हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए अगर उन मॉलिक्यूल्स को या उन ड्रग्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो फार्मोलॉजिकली हमारे पास डिफरेंट शो होते हैं, उनका इफेक्ट डिफरेंट होता है. ओके, दीज आर द एनेंटियोमर्स. आप देख सकते हैं हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज़ द ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन, और हमारे पास चारों फोर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एंड दैट इज़ नोन एज द chiral molecules, and both are the enantiomers of each other. Optical isomerism of the lactic acid. Okay, that is the molecule of lactic acid. और lactic acid को अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास इसमें होता क्या है, एक हमारे पास कार्बन है, दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है दैट इज़ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, वन आईयूपैक नेम 1 2 3. इसका नेम हम कहेंगे दैट इज़ द 2 हाइड्रोक्सी, because there are 3 carbons, so it is known as 2 hydroxy propanoic acid. Okay, that is the 2 hydroxy propanoic acid. and student अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, now just आप खुद गैस करें, is it chiral or achiral? Yes, obviously it is chiral molecule. Why? Because 4 valencies are attached with the 4 different atoms or group of atoms. Okay, it contain, you can say हमारे पास चारों तरफ different group of atoms attached हैं. Now you just observe the mirror image. अगर आप इसका mirror image देखें तो आप देख सकते हैं ये mirror image show कर रहा है, ठीक है, but optically they are active. Optically active क्यों है? Because the lactic acid जो हमारे पास chiral molecule है, और हमारे पास chiral molecule होने की वजह से यहाँ पॉजिटिव शो कर रहा है कि ये enantiomer पॉजिटिव है, दैट इज़ द enantiomer नेगेटिव. ओके, तो ये हमारे पास इस तरह के इसके 2 मॉलिक्यूल्स, हमारे पास 2 डिफरेंट तरह के हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो enantiomers होते हैं. एक हमारे पास पॉजिटिव एसिड होता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव एसिड होता है. नाउ हियर इज़ अ रैसिमिक मिक्सचर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास एक ऑप्टिकली इनएक्टिव लैक्टिक एसिड भी होता है, जिसमें हमारे पास दोनों हमारे पास जो एनेंटियोमर्स हैं, पॉजिटिव एनेंटियोमर और नेगेटिव एनेंटियोमर, इन दोनों का मिक्सचर होता है जिसको रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं. और डेफिनेटली ये हमारे पास होगा दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. Okay, now here another example, that is the tartaric acid. Tartaric acid is also known as the 2,3-dihydroxybutane dioic acid. Okay, that is the IUPAC name. अगर आप देखें तो ये 1 2 3 and 4 कार्बन्स हैं, और अगर आप देखें तो हमारे पास 2 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है. ब्यूटेन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वी हैव द 4 कार्बन्स. एंड डायोइक एसिड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ओके, कॉमन नेम इज टार्टेरिक एसिड, बट द आईयूपैक नेम इज 2,3-dihydroxy butane dioic acid contain the 2 asymmetric carbon atoms. Okay, 4 forms of tartaric acid are known. कौन कौन सी है हमारे पास? 2 of them are optically active and 2 of them are optically inactive. You just see the example. Here we have the optically active you can say we have a 2 forms optically active. That is the positive acid and that is the negative acid. Both are the mirror image. But अगर हम polarimeter में देखते हैं तो हमारे पास दिस वन पॉजिटिव वाला जो है प्लेनोपोलराइज लाइट को पॉजिटिव में ले जाता है, और ये हमारे पास प्लेनोपोलराइज लाइट को नेगेटिव में ले जाता है. ठीक है, हियर दैट इज़ द थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म हमारे पास रैसिमिक मिक्सचर, जो मैंने आपको बताया था. रैसिमिक मिक्सचर में क्या होता है? दोनों का हम इक्वल मिक्सचर लेते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ द मीजो एसिड. मीजो एसिड में सर आप देखें स्टूडेंट, दैट इज़ अ लिटल इंटरेस्टिंग. यहाँ पर आपके पास सिर्फ चेंज क्या आ रहा है कि अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखें और इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ चेंज यू कैन से कार्बन 2 में आ रहा है. कार्बन 2 में यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप जो है उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, और इसकी वजह से ये हमारे पास जो मीजो एसिड है ये भी हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ first is the tartaric acid
positive, टार्टेरिक एसिड पॉजिटिव, इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द क्लॉकवाइज, ठीक है, और इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहते हैं. सेकेंड इज द टार्टेरिक एसिड नेगेटिव, इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द एंटी क्लॉकवाइज. एंड द लास्ट वन जो कि हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर होता है और इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से शो करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास. एंड फोर्थ वन तो यू नो वेरी वेल, दैट इज़ द मीजो एसिड. तो हेयर द 4 फॉर्म्स ऑफ टार्टेरिक एसिड, जिसमें हमारे पास 2 एक्टिव होते हैं, इन विच टू ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव और 2 हमारे पास इनएक्टिव होते हैं. होपफुली स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से. In detail we study about the optical isomerism. In the next lecture inshallah we study about the geometric isomerism. Here the quick quiz. What is mean by the conjugation, the chemistry? What is isomerism? How many types of isomerism exist? What is the difference between the stereoisomerism and geometric isomerism? And geometric isomerism inshallah we will study in the next lecture. Differentiate between the chiral and achiral substance. Explain the terms plane polarized light, optical isomerism and enantiomers. Thank you so much students. Wish you all the best. Allah Hafiz.